So the students, today we are going to discuss about the magnetic effect of electric current as the subject physics भौतिक शास्त्र. The force of attraction or repulsion in and around a magnet is called magnetism. Here is the lodestone as a kind of the mineral found in the magma, that is called the magma. Magnetite or the lodestone as an ore of the iron, the magnet that is found in nature. When a magnet is cutting into two parts, breaking into two parts, these parts are called the domains of magnet, and each part is just like a separate magnet. Each part behaves just like a separate magnet. Just like there is the N and S. The blue color is with S and red color with the N. N denotes north direction, north pole, and S denotes the south pole. When a magnet is cutting into two parts, these parts are called the domains of magnet. Okay, so when we cut the magnet into two parts, each part behaves just like a magnet, and these parts are called the domains. Attraction. The unlike charges attract each other in the first picture, and repulsion, the unlike charges repel each other, and south pole to south pole repel each other, north pole to north pole repel each other, while south pole to north pole attract each other. When a magnet is placed near a current carrying conductor, here is the figure, and the circuit is shown, circuit in which the battery key, and that is the open circuit, and magnetic compass or needle is put into the center of the circuit. So when the circuit is closed, the magnetic needle show the deflection. Okay, so deflects from its original position. So when there is no current flowing through the circuit, there is no deflection in the magnetic compass. When the current flows through the circuit, the magnetic compass deflects. देखिए इस सर्किट के अंदर जब तक ये स्विच ऑन नहीं है, स्विच ऑफ है, मीन्स सर्किट जो है वो ब्रेक है, तब तक उसमें कोई डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. पर जैसे ही हमने उसको स्विच ऑन कर दिया और करंट उसमें फ्लो हुआ, तो ये जो है नीडल जो है डिफ्लेक्ट दिखा रही है. इसका मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर अगर मैग्नेट को लाया जाता है तो वो उसका बिहेवियर बदल जाता है. Defining a magnetic field. Iron filling, so arrange them, okay, sieves along the curve path. एक मैग्नेट के आसपास आप किसी भी उससे ऐसे बिखेर दो, स्केटर कर दो आयरन फिलिंग को, तो वो एक इस तरीके का पाथ बनाती है. रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी फेल्ट is known as the magnetic field. Why does the iron filling form pattern? Due to the force exerted by the magnet, the iron filling arrange themselves in the pattern as shown above. How is the magnetic field represented? Magnetic field किस तरीके से represent होती है? Now that is the first figure shows that the unlike charges, and there is the iron filling is put, two magnets are here which opposite poles put in this way, and iron filling is scattered, and that is the way of the arrangement of the iron filling around the magnet. Here in the second figure, the like poles
and iron filling shows in this way. Magnetic field is represented by the magnetic lines of the forces of the field lines. What are magnetic field lines, or what are the magnetic lines of magnetic force? It is path taken by unit north pole when placed in a magnetic field. नॉर्थ पोल साउथ, दैट इज़ द थ्रू द कंपास को आप धीरे धीरे इस तरीके से रखते जाइए और पॉइंट पेंसिल से करते जाइए, आपको बिल्कुल नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जब आप उनको ड्रा करोगे तो आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है प्लॉट कर पाएंगे आप बहुत अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ये देखिए इधर मैग्नेटिक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स है इस तरीके से और इस तरीके से। कंपास निडल जो है वो इस तरीके से बताती है। द फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू द साउथ पोल, सीधा सा है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल में चली जाती है। नो टू लाइंस विल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, और मैग्नेट के अंदर ये लाइन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मूव करती है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड नियर द पोल, नियर के पास ये क्राउडेड होती बहुत ज़्यादा होती है। If you bring iron filling or iron nails close to a magnet, the filling of nails will get attracted to the magnetic pole. यदि आप आयरन फिलिंग को लाएंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा फाइलिंग। द सेंटर ऑफ द मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट द फाइलिंग ऑफ द नेल्स, वाई? Because the magnetic lines of force are crowded near the poles. A current carrying a street conductor produces a magnetic field and activity. एक कार्डबोर्ड लीजिए, एक कार्डबोर्ड में सेंटर में उसको क्या कर दीजिए आप, एक होल कर दीजिए, एक कॉपर वायर को इस तरीके से निकालिए और ये बैटरी से उसको जोड़ दीजिए, और बैटरी से जोड़ने के बाद उसमें दोनों तरफ आप उस कार्डबोर्ड का अरेंजमेंट ऐसे कीजिए कि वहाँ पे आप कंपास रख पाएँ, और आप देखिए कि इसमें आयरन फिलिंग जो यहाँ डाली गई है तो वो किस तरीके से जब आप उसको सर्किट को जब क्लोज़ करते हैं, क्लोज सर्किट में इस तरीके से आयरन फिलिंग अरेंज हो जाती है। और ये एक्टिविटी है। हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज़ द, ये फिगर से दिखाया गया है। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर कैरिंग करंट, कंडक्टर कैरिंग करंट चाहिएगा। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से आपको राइट हैंड को थंब ऊपर करके रखना है। जिस डायरेक्शन में थंब है वो करंट का फ्लो दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है। थंब पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अदर फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और जितने भी है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताती है। दैट इज़ द राइट हैंड ग्रिप रूल कहलाता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल में इस तरीके से हो जाएगा, वो सेम कंडीशन है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द राइट डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रिक करंट भी राइट डायरेक्शन में है। राइट हैंड राइट थंब इस तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से है वो उसके अपनी लाइन, हमारी जो फिंगर से जिस तरीके से वो सर्कुलर में है हमारी फिंगर, उसी डायरेक्शन में जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सो दैट द थंब इज स्ट्रेच्ड along the direction of the current, then the fingers wrapped around the conductor gives the direction of the magnetic field. What happens when the direction of the current through the conductor is reversed? अगर यही जो करंट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स्ड हो जाए तो क्या होगा? करंट डाउन जो होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से जाएगी? करंट अप है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है और करंट, तो उसमें आपकी डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये डाउन था,
so into paper and the current out of the paper. What happens to the number of magnetic field lines, magnetic field strength when the current in the conductor increases? करंट को इंक्रीज किया जाता है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम होगी, उनकी फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? देखिए, वीकर फील्ड है, लोअर करंट है, और स्ट्रॉन्गर फील्ड है, स्ट्रॉन्गर करंट है. Strength of the magnetic field, a stronger current will produce a stronger magnetic field around the wire as shown in the figure below. आप देखिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, स्ट्रॉन्गर करंट है, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के अराउंड वो जो प्रोड्यूस हो जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू एक सर्कुलर लूप कैरिंग करंट. सर्कुलर लूप मीन्स कॉपर वायर से सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट है. ये पूरा सर्किट दिखाया है, इस तरीके से सर्कुलर लूप है, ये उसमें से आ रहा है और इस तरीके से ये पूरा सर्किट बताया. ये एक बोर्ड है. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से दिखा रहे हैं. और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ सर्कुलर लूप. सर्कुलर लूप में दोनों तरफ ये सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है. और डायरेक्शन दिखा रहा है वो बिल्कुल. और नीचे आपको पूरा सर्किट है और इस तरीके से कनेक्शन है और रियोस्टेट वगैरह सब लगा हुआ, बैटरी लगी हुई है और क्लोज सर्किट है ये. द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. सेंटर में क्या होगा? इंक्रीजेस व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस. जैसे करंट बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी. इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस. जब कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा दोगे तब भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. डिक्रीजेज एज द रेडियस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस. जैसे ही आप कॉइल की रेडियस को बढ़ाओगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा. अ सोलेनाइड an insulator copper wire wound in the form of cylinder is called a solenoid. कोई भी होलो आपके पास होलो थिंग है, होलो कोई भी आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर लाइक एक कोई भी होलो ऑब्जेक्ट है, उस पर आप इंसुलेटर कॉपर वायर को इस तरीके से लपेट दीजिए. करंट कैरिंग सोलेनाइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट. और जो है करंट कैरिंग सोलेनाइड है वो बार मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड. करंट कैरिंग सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनाइड greater the number of turns, the greater the strength of the electromagnet. As the number of turns of the coil increases, the magnetic field strength also increase, and that is called the electromagnet. As the current flowing through the solenoid increases, the magnetic field strength also increases. जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है. एज सॉफ्ट आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सोलेनाइड. अगर सोलेनाइड के अंदर सॉफ्ट आयरन की आप राड डाल दे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, और ज़्यादा बढ़ जाएगी. फाइंडिंग द पोलरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनाइड. कैसे पता लगाएंगे? तो आप इसमें से देखें और देख के पता. इफ द करंट फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एस पोल साउथ पोल. इफ द करंट फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थ पोल. द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग ए कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड. A current carrying conductor when placed in a magnetic field experiences a force and then moves. देखिए, करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक फोर्स जो है उसको फिल करता है और वो मूव्स करने लगता है. देखिए इसमें इस तरीके से बताया हुआ है. ये मैग्नेट है, यू मैग्नेट है, यू शेप
हॉर्सू शेप मैग्नेट है और ये इस तरीके से अरेंजमेंट है इसका। The direction of the magnetic field is downward from north to south pole. When the switch is switched on, the copper rod becomes a current carrying conductor. Movement of the copper rod shown that there is a force acting on the current carrying conductor in the magnetic field. If the switch is switched on, the current flow in the copper rod is from B to A. Describe what happens to current carrying conductor in a magnetic field. When the switch is on, the current flows through short copper wire produced magnetic field. The interaction between the magnetic field produced by the current and the magnetic field of the permanent magnet occurred. The interaction between the two magnetic fields products a force on the conductor. The short copper wire moves to the left. Determine the direction of the magnetic force when the direction of the magnetic field is reversed. Determine the direction of the magnetic force when the direction of the current flow is reversed. Determine the direction of the magnetic force when the direction of the magnetic field is reversed. Determine the direction of the magnetic force when the direction of the current flow is reversed. What is the Fleming's left hand rule? Look at the picture. Thumb equal to thumb shows denotes the force of the motion. Forefinger equal to magnetic field and second finger equal to current. So there is the diagram. The force is the force or motion up to the upwards direction. Right hand side the magnetic field and current and the direction of the third here in this way. Okay, three-dimensional process है. So that is the Fleming's left hand rule. Thus when the direction of the magnetic field and the current is known, the direction of the magnetic force or motion can be determined. This method is known as the Fleming's left hand rule. State the Fleming's left hand rule. अब यहाँ पे स्टेट देखिए, लेफ्ट हैंड रूल जो है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया और डायरेक्शन ऑफ द करंट हो गया. स्ट्रेच द थंब द फोर फिंगर ओके and the center finger of the left hand mutually perpendicular to each other. The forefinger is the direction of the magnetic field, the center finger is the direction of the current, then the thumb will point in the direction of the force acting on the conductor. आप भी इस तरीके से अपना लेफ्ट हैंड को रख के ये याद कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल क्या है. An electric motor. Electric motor is the device of the working on the principle of the magnetic effects of the magnetic effects of the current. Rotation produced pivot magnet north and south. There is the coil of the copper and here is the carbon brush and commutator. Okay, there is the axle in which that is the direction. So how does the north pole and south pole, what will happen then? The brushes जो है वो डिस्कनेक्ट करते हैं इसको. स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है एंड पावर सप्लाई यहाँ से होती है. द डायरेक्ट करंट मोटर डीसी मोटर है ये. वर्किंग सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर. ये वर्किंग सिस्टम आप देख लीजिए किस तरीके से वो मूवमेंट करती है और किस तरीके से ये घूमता है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए इसको.